इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले ली कि स्केलर है, वेक्टर है, इसका यूनिट क्या होता है, एंड सो ऑन, कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, whenever we want to find the electric field intensity at any point, we put unit positive charge at that point, because the definition is very simple. Force on unit positive charge is called electric field intensity. That's all. After this, we derive a formula to calculate the electric field intensity due to given charge, because for the different charges at different distances, the electric field intensity will be different. So the next derivation is electric field intensity due to point charge. Point charge का मतलब होता है कोई भी चार्ज को हमने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, that is called point charge. Another way is charge can be distributed on a larger area. जैसे कोई शीट है, इस पे ये q चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस. लेकिन इसी चार्ज को मैंने एक पॉइंट पे रख दिया, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज. जैसे रहने दीजिए, अपन काम की बात करते हैं, जैसे मेरे लंबा डिस्कशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. फॉर दिस let us suppose plus q charge is placed at this point 2, and due to which we want to calculate electric field intensity at this point A, which is at a distance r from q charge. That is q charge रखा है वो पॉइंट पे और उससे r डिस्टेंस पे a पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल. as we already discussed, put q0 charge plus q0 charge at point A and calculate the force on q0 due to this q charge using Coulomb's law. So how we proceed this derivation? Suppose electric field intensity is to be determined at point A due to plus q charge placed at point O, and the electric field intensity at point A is calculated at distance r. और इसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं. Suppose plus q charge is placed at point O, due to which electric field intensity is to be determined at point A at distance r from O. Okay, so for this, now place plus q0 charge at A. Then force on plus q0 charge according to Coulomb's law is given by F is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q q0 q1 q2 upon r square. तो एक चार्ज है q, एक चार्ज है q0, तो q1 q2 upon r square. Suppose the charges are placed in here vacuum, that's why we write here epsilon 0 epsilon r is equals to 1 here for air or vacuum. So this is the force. Therefore जैसा कि पिछले मेथड में हम पहले भी कर चुके कि q0 चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो F है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो F अपॉन q0, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है. तो we calculated this force F on q0 charge due to q charge. Therefore electric field intensity at point A is given by E is equals to F upon q0. So 1 upon q0, put the value of F, 1 upon 4 pi epsilon 0 q0 upon r square. q0 will cancel and we get E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. So this is the required formula for electric field intensity due to any point charge. मतलब जब भी हमको कोई भी चार्ज दे दिया q चार्ज, उससे बोला r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इस फार्मूले में 1 upon 4 pi epsilon 0 तो हमें पता है क्या, 9 into 10 to the power 9, that is constant. हमें q पता होना चाहिए और r. If we know the value of q and r, using this formula we can calculate the electric field intensity at any desired point. Remember here again, as we discussed in Coulomb law, to put the value, to apply the formula for the Coulomb law for force of electrostatic between 2 point charges, we assume only the magnitude of the charges, not the sign.
मतलब प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, हम हमेशा चार्जेस की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस साइन पुट नहीं करते कूलम लॉ में। वैसे ही याद रखिए, टू अप्लाई दिस फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी ओनली पुट द वैल्यू ऑफ द चार्ज, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विदाउट कंसीडरिंग इट्स साइन। यानी कि प्लस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे निकालना हो तो सेम फार्मूला, माइनस चार्ज के कारण भी निकालना हो तो भी सेम फार्मूला, माइनस चार्ज नहीं रखेंगे, चार्ज की केवल वैल्यू ही रखेंगे प्लस, दैट्स ऑल। वन मोर थिंग, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे r एक्सिस पे, तो e का क्या यूनिट है, वो यूनिट हमारे लिखना पड़ेगा कि e इज इक्वल टू दिस। बट सपोज we want to write this formula for electric field intensity for any other medium than air or vacuum, एयर वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो द फार्मूला कैन बी मॉडिफाइड एज 1/4 pi epsilon 0 q upon epsilon 0 epsilon r and q upon r square. So instead of epsilon 0 we put epsilon 0 epsilon r, where epsilon r is the relative permittivity of the medium. एयर वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी हो जाती है 1, इसलिए ये फार्मूला एयर वैक्यूम के लिए और ये किसी भी मीडियम के लिए। दैट्स दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। किसी एक चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये फार्मूले हम यूज करेंगे। लेकिन फिर एक कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है, क्या? Let us suppose there are various charge distribution q1, q2, q3, dash qn, which are at distances r1, r2, r3, rn respectively from point O, and we want to calculate the net resultant electric field intensity at point O due to various charges, due to a number of charges. ये बहुत सारे चार्ज मिलकर किसी एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको कैलकुलेट करना है। तो मतलब इस फार्मूले को देखिए 1/4 pi epsilon 0 q upon r square, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का ये फार्मूला क्या बताता है, किसी भी सिंगल चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फार्मूला है। लेकिन हमको बहुत सारे वेरियस मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक कॉमन पॉइंट पर निकालना है। ये वैसे ही जैसे कि हमने कूलम लॉ में किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो अगेन वी राइट हियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि एक से ज्यादा चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगेन जैसे कि कूलम लॉ में बोला था कि पहले एट फर्स्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O due to q1 charge. Forget about the presence of other charge. Let us say it is E1. Now proceed in similar manner, that is to find the electric field intensity due to q2 charge at point O. Forget about the presence of other charges like this. It is E2. For q3 it is E3. For qn it is En. That is individual charges के कारण O point पर electric field intensity E1, E2, E3, En respectively. तो all charges के कारण combined the resultant electric field intensity कितनी होगी, तो जैसा कूलम लॉ में किया था, take the vector sum of this, इन सब का वेक्टर सम ले लेंगे। So at first write the principle of superposition. The statement is very simple. The resultant electric field intensity at a point due to number of charges is equal to the vector sum of electric field intensity each charge separately. जैसा कि कूलम लॉ में किया था, अलग अलग चार्जेस के कारण सिंगल चार्ज में फोर्स कैलकुलेट किया था, फिर उसको वेक्टर सम लिया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही लिखा है कि electric field intensity, resultant electric field intensity at any point due to number of charges is equals to vector sum of electric field intensity due to each charge separately. अलग-अलग चार्जेस के कारण electric field intensity कैलकुलेट करेंगे और उसका वेक्टर सम ले लेंगे, that will be the resultant electric field intensity at point O. So let us suppose the electric field intensity due to charges q1, q2, qn at point O
are E1, E2 dash 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 En respectively. That is Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2 and so on. Therefore, according to principle of superposition, resultant electric field intensity at point O will be equals to vector sum of these individual intensities E1 plus E2 plus 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 En. Arrow put किया, that means vector sum really not the scalar sum. Okay, so this is the principle of superposition. It is not asked, but we use this principle of superposition in various complicated cases. अगर एक से ज़्यादा चार्जेस किसी एक पॉइंट पर अगर फोर्स लगा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा. अलग-अलग चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे और उसका वेक्टर सम ले लेंगे. इस थ्योरम पर बेस्ड, इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, और वेरियस न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत यूजफुल है. ओके, after this principle of superposition, one more important concept from the examination point of view, and this is electric lines of force. Okay, electric lines of force, short में ELF, electric lines of force. And for the first time, it was imagined by Faraday. Faraday ने imagine किया कि how this Q1 charge communicate the force to this Q2 charge. ये दो चार्ज है Q1 Q2 जो A और B पॉइंट पे रखे हैं. अब ये Q1 चार्ज Q2 पर रिपल्शन लगाता है, Q2 Q1 पर रिपल्शन लगाता है, तो ये फोर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे भेजते हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ. तो फैराडे ने इमेजिन किया कि एक फोर्स की लाइन बन जाती है, वो लाइन फोर्स को कैरी करती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये तो इसका मीनिंग हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए क्या इमेजिनेशन किया गया, क्यों किया गया. अब हम आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन. एट फर्स्ट द definition of electric lines of force. The electric lines of force ELF is defined as the path followed by unit positive charge in any electric field. This may be straight line or curved, such that the tangent drawn to it represents direction of resultant electric field intensity at that point. These are imaginary lines. एक्सिस्टेंस में नहीं, मतलब हमको दिखाई दे देते. These are imaginary lines. क्या होता है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अभी बताया था शुरू में कि फैराडे ने इमेजिन किया कि फोर्स की लाइन एक चार्ज से चलती है दूसरे चार्ज तक, दूसरे चार्ज से चलती है पहले चार्ज. तो these are, ऐसा इमेजिन किया था. These are imaginary lines and this concept was given by Faraday. ये कॉन्सेप्ट फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था. इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि फैराडे कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस वन चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पाथ को फॉलो करता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. जैसा कि हम शुरू से जानते हैं 11th क्लास से, बार-बार ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस में 11th से करवाइए कि डेफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा मीनिंग, उसका जो एसेंस होता है वो डेफिनेशन में होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है. हम इसे जानना चाहते हैं एक लेवल के हिसाब से. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिंपल चीज है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो मूव होगा, तो जिस पाथ से वो मूव होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. दैट्स वेरी सिंपल. अब
कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी चल सकता है, कर्व पाथ पे भी चल सकता है। तो ये आगे हमने लिख दिया कि दिस विल बी स्ट्रेट लाइन और कर्व सच दैट अगर कर्व पाथ है, स्ट्रेट लाइन है तो नो मैटर, अगर कर्व पाथ है तो द टेंजेंट ड्रॉन टू इट, इसके किसी भी पॉइंट पे, कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट क्या होता है, मैथमेटिक्स में जानते हैं कि कोई भी कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो कोई भी गिवन पॉइंट, जैसे ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है हमको इस कर्व के ऊपर, तो ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस कर्व को टच करते हुए पास होगी, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। तो any straight line passing by touching any curve is called tangent, a tangent. So we can draw tangent at various points. Suppose we ask to find the tangent at point P, so we draw a straight line touching this curve from the point P, so this is the tangent. So in this way tangent is drawn. So tangent क्या represent करता है, कर्व है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो tangent represents the direction of resultant electric field intensity at that point. Suppose you want to find the direction of resultant electric field intensity, because all these are in electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज चल रहा है शुरू में लिख दिया हमने, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता है तो किसी भी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, वेरियस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कितनी है जानना है, उसकी डायरेक्शन क्या है जानना है। तो डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट। जिसे हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए पॉइंट पे क्या है, ड्रॉ द टेंजेंट, बी पॉइंट पे क्या है, ड्रॉ द टेंजेंट। This tangent represents the direction of resultant electric field intensity at that point. अभी ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है, इसमें से ये पूछा जाता है कि who introduced the concept of electric lines of force? It was Faraday. Answer Faraday लिखना है। So this is the definition. अब definition से ज्यादा important है इसकी properties। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कैसे, let us see. Various properties of electric lines of force. For discussing the property, let us take an example. Suppose I put here at point O plus Q charge, and this is the electric field of this Q charge. ये Q charge है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके पास में A पॉइंट पर प्लस वन चार्ज रखता हूँ। What will happen? This Q charge repel this plus one charge. So this plus one charge will move along this path. If I put plus one charge here at this point B, then the plus one charge will move along this path. Similarly, here it will move along this. It will repel. Here it will repel like this. So it seems to us, क्योंकि हमने डेफिनेशन दी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्लस वन चार्ज को ए पे रखा, बी पे, सी पे, डी पे, तो वो इन पाथ से पास होता है। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इसी पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इट appears that electric lines of force are emerging from, emitted from the positive charge. पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आती है, क्योंकि पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा तो दूर जाएगा। तो इससे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, emerging from positive charge. But suppose instead of positive charge I place here negative Q charge at point Q, and if I place unit positive charge here, then what will happen? This unit positive charge will be attracted by this negative charge, so it will move along this. If I place here unit positive charge, it will be attracted along this, here like this, here like this. So here it seems that in the second example it seems that the electric lines of force, क्योंकि unit positive charge का पाथ अंदर की तरफ होगा, माइनस चार्ज की तरफ आएगा अट्रैक्शन के कारण, तो it seems to us that electric lines of force are entering into negative charge. यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज में एंटर होती है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये भी बोले कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करिए पॉइंट चार्ज के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड बनाएंगे, नेगेटिव के लिए इनवर्ड बनाएंगे, दैट्स ऑल, ठीक। आफ्टर दिस, ये डिस्कशन के बाद में
अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ओपन कर्व। ओपन कर्व्स का मतलब होता है कि अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस q चार्ज के पास में रख दिया तो ये इससे हमेशा रिपेल होगा, कभी भी घूम के वापस इसकी तरफ नहीं आएगा। तो दैट काइंड ऑफ कर्व कि जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर एंड पॉइंट कभी नहीं होता है, दैट कर्व इज कॉल्ड ओपन कर्व। और जहां से स्टार्ट हुआ कर्व घूम के वहीं आ गया तो उसको बोलते हैं क्लोज कर्व। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व्स। सेकंड पॉइंट, अभी ऑब्जर्वेशन के एग्जांपल में देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर started from, emerged from, started from positive charge and ends at negative charge. नेगेटिव चार्ज में एंटर होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। थर्ड पॉइंट डेफिनेशन में बोला कि द टेंजेंट ड्रॉन टू ELF represents the direction of resultant electric field intensity at that point. Fourth point, two electric lines of force, क्योंकि ये डिस्कस कर चुके हम अभी डेफिनेशन। Fourth property is two electric lines of force never intersect, एक दूसरे को intersect नहीं करते, never intersect each other। यानी ऐसा नहीं होता है कि एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ए पॉइंट। इट इज नॉट पॉसिबल, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? कभी-कभी पूछते हैं कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट? रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज़ एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। दो टेंजेंट बन सकते हैं। फर्स्ट कर्व का टेंजेंट ऐसे जाएगा T1, सेकंड कर्व का टेंजेंट ऐसे जाएगा T2। अब ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और 11 से जानते हैं रिजल्टेंट नंबर ऑफ फोर्सेस का एक सिंगल फोर्स होगा। रिजल्टेंट कभी भी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा नहीं पॉसिबल है। तो अगर हम यहां इंटरसेक्ट करते हैं दो कर्व्स, तो उन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दो टेंजेंट बनेंगे, तो दो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब समराइज करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं क्या, if two lines of force never intersect each other because at their point of intersection two tangents can be drawn which represents two direction of resultant electric field intensity at a single point, which is not possible. That's why. Okay, next property. The electric lines of force tends to contract along length के along shrink होने की टेंडेंसी रखती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट मींस ये प्लस चार्ज है, मान लीजिए ये माइनस चार्ज है, बीच में समवेयर यहां हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये प्लस से रिपेल होगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसका पाथ ऐसा बनेगा। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पाथ को मूव हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास में आएंगे, तो ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है। ये प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग लेंथ। Similarly, sixth property, the electric lines of force repels each other in lateral direction. Lateral direction का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक ये जा रही है नंबर 1, ये नंबर 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है। तो laterally मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करती है इससे। Why? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पाथ से जा रहा है। दूसरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ। तो दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पास से निकलेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल इन लैटरल डायरेक्शन। दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7th। Electric lines of force are very close in stronger electric field. ELF are very close
in stronger electric field and far apart in weaker electric field. That means जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां दूर दूर होती है. कैसे देखते हैं. से these lines represents electric lines of force like this, and the electric field intensity at point A is EA, electric field intensity at point B is EB. So which is greater and which is smaller? कौन बड़ा होगा, EA और EB में से? ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता रहे हैं और B पॉइंट पे. तो अभी हमने क्या प्रॉपर्टी लिखी? They are very close in stronger electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो वो पास पास होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वो दूर दूर होगी. तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डिस्टेंस ज्यादा है तो ये EB स्मॉलर होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डिस्टेंस बहुत कम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा. दैट इज वी कैन राइट EA is greater than EB. So this is the property 7. Now next property 8. Electric lines of force are always perpendicular to surface of conductor. That is, if we draw electric lines of force from the surface of conductor, it will always be perpendicular to surface of conductor. That means, suppose this is a conducting sheet, metallic sheet, and we are given positive charge to this. So how we draw electric lines of force from this conducting surface? There may be this possibility, this one, or this one. So I draw 3 electric lines of force from the surface of conductor. So which line represents the true direction of electric lines of force from conductor? तो ये प्रॉपर्टी को याद रखिए. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस ऑफ कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होती है. लाइन 1 परपेंडिकुलर दिख रही है तो ये लाइन 1 रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को. लाइन 2 इंक्लाइंड है जो इस प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं हो सकती. ये पैरेलल है सरफेस के, ये भी नहीं हो सकती. तो ट्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय लाइन 1. ओके, दिस इज 8th property. Now 9th property. Inside hollow conductor. That means this is a hollow metallic box and these are the electric lines of force like this. So electric lines of force will discontinue inside the box and will continue outside the box like this. मतलब जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हो रास्ते में मैंने ये हॉलो मेटालिक बॉक्स रख दिया तो बॉक्स के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बनेगी. लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बनेगी मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कोई पाथ फॉलो नहीं करेगा. पाथ फॉलो नहीं करेगा मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा. फोर्स लगेगा तो जहां है वहीं रहेगा, इसलिए कोई पाथ नहीं बनेगा, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं बनेगी. ये प्रॉपर्टी है 9th प्रॉपर्टी. नाउ वन मोर प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर parallel to each other in uniform electric field. Uniform electric field. कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है एवरीवेयर एट ऑल पॉइंट. तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, जैसे इस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो एवरीवेयर एट ऑल पॉइंट इफ यू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड and its direction, then we find that the electric field has same magnitude everywhere as well as direction. मतलब हर पॉइंट पे इस रूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनती है? पैरेलल, लाइक दिस. तो whenever we draw parallel electric lines of force, this will represent uniform electric field. किसी भी स्पेस रीजन में अगर हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है तो हम पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर देंगे, तो दैट विल रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. If the electric field is non-uniform, then lines of force will not be parallel at all, like this. ये ऐसा डायग्राम बना दिया. ये डायग्राम क्या शो करता है? यहाँ
से हमको समझ में आ ही गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है EA की, और यहाँ EB पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B वाली EB कम है। पहले बोल दिया तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया।